Morning, children. Now we will learn about the preparation of haloarenes. First method is from aromatic hydrocarbon by direct halogenation process. So in direct halogenation, aromatic compound is treated with halogen, especially chlorine and bromine, in presence of some halogen carrier like FeCl3 or AlCl3 anhydrous at 310 to 320 Kelvin temperature. Now this reaction is very good example of electrophilic substitution reaction. In this reaction, FeCl3 or AlCl3 act as Lewis acid and it reacts with halogen and produce like this. See here in FeCl3 or AlCl3, iron is electron deficient, so it attracts one shared pair from this chlorine molecule. Actually it induces heterolytic bond cleavage and forms FeCl4 minus and Cl plus chloronium ion. So this chloronium ion, that is electrophile, is the attacking species here. So it attacks at any carbon atom in aromatic ring as it is unsubstituted ring, so it can attack on any carbon atom and replaces the hydrogen as H plus. Then H plus reacts with FeCl4 minus to make HCl and FeCl3 is again regenerated. So this is the mechanism actually how this electrophilic substitution reaction takes place. So by this method chlorobenzene, bromobenzene can be prepared. In case of direct iodination, it is a reversible reaction, so it is carried out in presence of oxidizing agent only like HiO3 and HNO3, as you have seen in direct iodination of alkane. Similarly, fluorination is very violent reaction, so it is very difficult to control the fluorination. So now in order to prepare iodo and fluorobenzene, we safely prepare it by using benzene diazonium salt. Now here we will take, this is the next method and the name of this method is Sandmeyer reaction. Now let us see what is Sandmeyer reaction. This is very important reaction from examination point of view and also for preparation of this chlorobenzene and bromobenzene. Now in Sandmeyer reaction we take benzene diazonium chloride as starting material. Benzene diazonium chloride. Now diazo means when two nitrogen join together, then it is called diazo. Now in this compound we have benzene, this diazo, and containing positive charge, that is diazonium, and this counterpart, that is chloride ion. तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल होगा. अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं है तो इसको आप एनिलीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीनामीन से, जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 in presence of HCl or HNO2 HONO, nitrous acid and HCl, and temperature is kept below 10 degrees Celsius, the diazonium chloride is formed. This is very good starting material for preparation of any haloarene. So first we will take Sandmeyer reaction. So what is Sandmeyer reaction? When benzene diazonium chloride is treated with CuCl in presence of HCl or CuBr in presence of HBr, we get chlorobenzene or bromobenzene as a product respectively. So see this reaction is called Sandmeyer reaction. We get chlorobenzene and bromobenzene. In order to prepare iodobenzene by this method, benzene diazonium salt is heated, is warm actually, with aqueous solution of potassium iodide, then we get iodobenzene as a product.
In order to prepare fluorobenzene, benzene diazonium chloride is treated with fluoroboric acid HBF4 below 5 degrees Celsius temperature. So this forms benzene diazonium fluoborate. एक साल्ट बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लूओबोरेट, और फिर इसको हम हीट करेंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन देगा। नाइट्रोजन और BF3 ये इवॉल्व होगा, हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। देयर इज ए रिएक्शन सब्स्टिट्यूट टू सैंडमेयर रिएक्शन, जिसको हम गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, जस्ट लाइक सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन यहाँ का यील्ड थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका ट्रीटमेंट हम CuCl से डायरेक्टली ना करके कॉपर पाउडर और HCl के साथ हीट करते हैं, देन वी गेट क्लोरोबेंजीन। Similarly, when benzene diazonium chloride is heated with copper powder and HBr, then we get bromobenzene as a product. Side chain chlorination, अगर हमें साइड चेन डेरिवेटिव बनाना हो एरोमेटिक्स में, तो हम जो हाइड्रोकार्बन है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको हेलोजन के साथ हम हीट करेंगे, यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस होगी। ध्यान रहे जब हम हेलोजिनेशन डायरेक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर लाइट नहीं रहती है, कोल्ड डार्क कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लाइट का होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साइड चेन पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। और हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है तो टर्शियरी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड मोर इजली एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा अगर साइड चेन में टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वहाँ पर आइसोमर बनने के भी चांसेस होंगे। दूसरा, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, मान लीजिए यहाँ पर इफ़ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो यहाँ पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और बेंजिलिडीन क्लोराइड ये बन सकता है, जहाँ पर 1,1 डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन सब जगह लाइट की प्रेजेंस होगी, Cl2 इन दिस, तो यहाँ पर बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से होगा, एक्चुअली तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जब बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा होता है तब उसको बेंजिल रेडिकल बोलते हैं कॉमन सिस्टम में। जब CH जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग से तो उसको बेंजल बोलते हैं। तो दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड, कॉमन सिस्टम में बेंजल डाइक्लोराइड बोलेंगे, और इसका नाम कॉमन सिस्टम में बेंजाइल क्लोराइड होगा। बेंजीन रिंग पर अगर CH2 है तो उसको हम बेंजाइल रेडिकल बोलते हैं। सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और जब बेंजीन रिंग पर केवल C अटैच्ड हो तो उसको बेंजो बोलते हैं, तो ये होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। सो दीज आर द मेथड्स by which haloarine can be prepared. Now we will study about the properties of haloarenes. Now first of all we should know what is the nature of haloalkane molecule. So in haloalkane you will find that carbon and halogen bond is polar, and this makes the overall molecule as a polar molecule, a permanently polar molecule, because of this permanent effect that is called as inductive effect. Now they are highly reactive class of compound. Now first we will see their physical properties. Although they are polar but they are insoluble in water. ये बड़ा important है, ये पूछा जाता है जनरली कि although haloalkanes are polar but they are insoluble in water. So the reason behind this is that the haloalkane molecules do not form hydrogen bond with water, so that's why they are insoluble in water, because they cannot make hydrogen bond. Regarding the boiling point, since they are polar molecule, so the interparticle force of attraction will be dipole-dipole attraction, which is much stronger than London dispersion type of van der Waals force of attraction in case of alkane. So their boiling point is higher than alkane. And if we go in haloalkane, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
वैसे वैसे साइज़ बड़ी होगी हाइड्रोजन एटम की। साइज़ बड़े होने के साथ साथ हेलो एल्केन की भी साइज़ बड़ी हो जाएगी और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि आर्डो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन RBr देन RCl। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन को फिक्स कर दें और एल्किल ग्रुप को वेरी करें, हम उसकी लेंथ को बढ़ाएं, तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तीसरी कंडीशन ये आती है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो रहा हो, हाइड्रोजन वही हो बट नंबर डिफरेंट हो। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम की संख्या बढ़ेगी, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्रेटर विल बी द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक और सिचुएशन आती है, आइसोमेरिक मेंबर्स अगर दिए हुए हैं जैसे 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन और इसके बाद फिर आपका मान लीजिए जो कंपाउंड है वो इस तरह से आ गया नियोपेंटेन में, नियोपेंटाइल क्लोराइड इस तरह से आ गया। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी उसमें ब्रांचिंग के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। ये चीज़ याद करने की है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ब्रांचिंग वहाँ पर बढ़ रही है तो ऐसे में मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होने लगता है, जिससे जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगी। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो दे आर हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जब हेलो एल्केन रिएक्ट होंगे तो जो इनका X है वो किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट होगा। तो चूँकि इन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, लेकिन कोई न्यूक्लियोफाइल तभी आ सकता है जबकि ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोफाइल यहाँ से डिटैच हो जाए। तो हम जानते हैं कि RI बॉन्ड लॉन्गर है सबसे ज़्यादा, आयोडीन की साइज़ बड़ी होने की वजह से, तो ये आसानी से क्लीव कर सकता है और जितना आसानी से क्लीव होगा उतना ही इजली न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक हो सकता है। सो आयोडो एल्केन इज much more reactive as compared to RBr, as compared to RCl and RF. This is because of the ease of cleavage of this bond, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर हम रिएक्शंस की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स में 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑब्जर्व। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स लाइक सोडियम और मैग्नीशियम, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जहाँ पर वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम और उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तब उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स द वीकर न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या होता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिटेल मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सबस्ट्रेट होगा जो कि हमारा हेलो एल्केन है जहाँ पर RX बॉन्ड पोलर है और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर लविंग स्पीसीज। तो ऐसे स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उन पर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो उस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेंगे और फिर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लीविंग ग्रुप के साथ क्या चला जाएगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट बन जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान होगा जितना कि ईज होगा इस बॉन्ड के क्लीवेज का। मीन्स मोर इजियर द बॉन्ड इज ब्रोकन, मोर इजियर विल बी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात ये आती है कि जो लिविंग ग्रुप है कितना इजली इस सेंटर को छोड़ सकता है। तो ग्रेटर द लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि आयोडाइड आयन का लिविंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा, सो दैट्स वाई RI इज़ मोर रिएक्टिव दैन RBr दैन RCl दैन RF। ये लिविंग प्रॉपर्टी के आधार पर है क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा आयोडाइड आयन यहाँ से लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल मेक द अटैक।
So now this is the way the nucleophilic substitution reaction takes place. Now we will take few examples of nucleophilic substitution reaction. When bromomethane is treated with aqueous solution of KOH, ध्यान रहे aqueous solution है ये. So now you see जब ये reaction होगा तो यहाँ पर ये bond polar है, ये del positive है, ये del negative है. वाटर में ये आयनाइज होगा, K प्लस OH माइनस देगा. OH माइनस का जो नेचर होगा वो किस तरह का होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा. सो दिस विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर ऑन दिस कार्बन एंड दिस विल मेक द मेथनॉल एज ए प्रोडक्ट, एंड दिस Br विल कम आउट एज Br माइनस और K प्लस के साथ जुड़ के KBr बना देगा. सिमिलरली व्हेन ब्रोमोमीथेन that is substrate is treated with this source of nucleophile जो कि सोडियम एथॉक्साइड है, इसमें न्यूक्लियोफाइल पार्ट इतना है जो कि एथॉक्साइड आयन है. नाउ दिस मेक्स द अटैक ओवर दिस कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन deficient and then forms ether as a product and NaBr. Now if you take suppose bromomethane this as a substrate and it is treated with two source of cyanide ion, तो यहाँ पर एक NaCN है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर साइनाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो NaCN है चूँकि इसका नेचर आयनिक होता है तो ये पहले डिसोसिएट होकर के Na प्लस और Cn माइनस दे देता है. तो इस केस में हुआ क्या कि चूँकि ये पहले ही आयनाइज हो गया तो साइनाइड आयन स्पीसीज मिल गई. अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और कार्बन पर भी लोन पेयर है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो ये अटैक दोनों एंड से कर सकता है, कार्बन एंड से भी कर सकता है और नाइट्रोजन एंड से भी कर सकता है. तो ऐसे सभी न्यूक्लियोफाइल जिसमें अटैक दो एंड से हो, जिसमें टू डिफरेंट अटैकिंग साइट्स हों, जिसमें टू डिफरेंट एटम्स विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जिससे अटैक हो रहा है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. द न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन्स टू डिफरेंट अटैकिंग साइट्स. तो जहाँ पर दो डिफरेंट अटैकिंग साइट्स होंगे ऐसे न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. तो चूंकि यहाँ पर आयनाइज हो गया तो दोनों साइड्स इक्वली अवेलेबल हैं. अब किस साइड से अटैक ज़्यादा होगा ये स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग बॉन्ड डिसाइड करेगा. तो अगर कार्बन के साइड से अटैक हो रहा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनेगा सो दैट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर टू डिफरेंट एटम है तो ओवरलैप हो सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग ना हो. तो इस कंडीशन में जो साइनो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, और आइसोसाइनो जो होगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा. लेकिन यहीं पर अगर इसी रिएक्शन को हम AgCN के प्रेजेंस में कराएं तो चूंकि AgCN में AgC बाड ये थोड़ा ये पोलर करेक्टर का है बाड, तो पोलर नेचर के होने से ये आसानी से यहाँ से क्लीव नहीं करेगा और जो मोस्टली अटैक होगा वो नाइट्रोजन एंड से होगा. तो यहाँ पर आइसोसाइनो प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर होगा, और जो साइनो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा. तो ये ध्यान देंगे कि AgCN लेने पर AgC बाड के पोलर कोवलेंट होने की वजह से जो मोस्टली अटैक है वो किधर से होगा, नाइट्रोजन एंड से होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा. लेकिन NaCN KCN लेने पर चूंकि ये पहले आयनाइज होगा आयनिक नेचर की वजह से, कार्बन और नाइट्रोजन एंड इक्वली अवेलेबल होंगे, सो अटैक मोस्टली टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन एंड बिकॉज इट मेक्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट. नाउ इफ वी टेक द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है KNO2 एंड AgNO2. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन हेलोएल्केन इज ट्रीटेड विद KNO2 और NaNO2, अगेन दिस इज आयनिक, और अगर ये टूटेगा तो नाइट्राइट आयन बनेगा. नाइट्राइट आयन में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर भी हो सकता है बाय रेजोनेंस, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. तो चूंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है तो मोस्टली जो अटैक हो रहा है वो कहाँ से होगा, ऑक्सीजन एंड से होगा. ऑल्दो नाइट्रोजन आल्सो कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन दिस केस मोस्ट ऑफ द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू ऑक्सीजन एंड, बिकॉज दिस इज आयनिक. ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा, नाइट्राइट आयन बनाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बट मोस्टली द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू nitrogen, and because it is having this negative charge and this pair is donated to the electron deficient center in the substrate molecule to make methyl nitrite as a major product
हालांकि नाइट्रोमीथेन भी बनेगा बट दैट विल बी माइनर हेयर। लेकिन यहीं पर अगर हम AgNO2 ले लें तो आप देख रहे हैं AgNO2 के केस में क्या हो रहा है कि Ag और O बाड ये थोड़ा ये कोवलेंट करेक्टर का है, तो मतलब ये डिसोसिएट नहीं होगा आसानी से। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर है और यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। अब आप देखिए यहाँ पर किसी पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर लोन पेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पर है तो कौन आसानी से डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? तो डेफिनेटली ये नाइट्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है जिसमें 7 प्रोटॉन है, लेकिन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है जहाँ पर 8 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब इसके जो लोन पेयर हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, सो दे कैन नॉट बी इजिली डोनेटेड। सो इट मीन्स हियर मोस्ट ऑफ द अटैक टेक्स प्लेस थ्रू द नाइट्रोजन एंड बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन सेंटर कैन बी इजिली डोनेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लाइक दिस वन। तो जैसे ही लोन पेयर ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने लगेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, सो दिस पेयर शिफ्ट्स हियर एंड मेक्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन है ये मेजर होगा और जो नाइट्राइट है RONO है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को जिसमें 2 डिफरेंट अटैकिंग साइट्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? सो द न्यूक्लियोफाइल which contains 2 different attacking sites or which contain 2 different atoms having lone pair electron through which attack takes place, such nucleophile is called ambident nucleophile. For example, Cn minus, NO2 minus, SCN minus, etc. Thank you very much.